I came to Canada for my masters directly after my bachelor's. मेरा कोई experience नहीं था. Still, my resume looked like this. You can't really tell कि ये कोई fresher का resume है. And the good part is that nothing in this resume is fake. And this is the exact resume that landed me my first corporate job in Canada without any experience as a project leader in a pharma company. If you're a fresher and आपको समझ नहीं आ रहा कि resume में क्या डालूँ या आपको interviews नहीं मिल रही because your resume is not impressive enough, it's going to change after this video because I'm going to teach you step by step कि आप भी अपना resume ऐसे कैसा बना सकते हो, and that too without lying about anything. Hi, my name is Bani and I have helped immigrants land $36 million in job offers. Without wasting any time, let's get into the resume. So I'll go step by step her section so that you can actually build it along with me. अगर आप अभी बनाना चाहते हो पॉज कर सकते हो, नहीं तो पूरी वीडियो देख सकते हो एंड एंड में बना सकते हो. By the way, ये वो सेम resume है जो मैंने अपनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए सबमिट किया था back in 2020 when I graduated from my masters. Now I know a lot more about resumes, but I wanted to keep it raw and share the actual resume. मैं आपको साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो जो मैंने तब नहीं किया था. So let's get started. Now the topmost section that you see there, that is pretty basic. अपना नाम लिख लो, contact details and LinkedIn. I think that can be improved. पूरा LinkedIn डालने की जरूरत नहीं है. Just write LinkedIn and then hyperlink the link so that it looks neater. Then comes the education section. Why did I decide to put it at the top? Two reasons. One is that I graduated from one of the top B schools in Canada, तो मेरे को वो सबसे ऊपर highlight करना था. And the second reason is I didn't have any work experience जो कि relevant हो. So I did put up my education at the top because I wanted to highlight that I have both management and technical skills. Management मेरे masters की वजह से and technical मेरी engineering degree की वजह से. And इसमें अगर आपका question आता है कि GPA डालनी है या नहीं, अगर आपकी impressive है तो डाल दो, अगर नहीं है तो छुपा दो. Next comes the key skills section. मेरा key skills section बहुत ही बकवास है. इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि एक ही type of skills में show कर रही हूँ, एक ही target role को focus कर रही हूँ. मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी mistakes भी बताऊंगी जो मैंने जॉब हंट में की थी. आपका की स्किल सेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए. यू शुड डिवाइड इट इनटू टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स एंड टूल्स एंड इट शुड बी रेलेवेंट टू द टारगेट रोल. ऐसे नहीं कि मिक्स एंड मैच करके लिख दो जैसे मैंने लिखा है. देन वी हैव द मीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिज्यूमे, द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट. तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे ये पॉपुलेट किया डिस्पाइट हैविंग नो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू सी देयर, स्टूडेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट एट QA Tech. That was actually my capstone project. But why did I put it under my work experience section and not the project section? Because capstone project, because we actually worked with a client. हम actual business problem पे काम कर रहे थे and we used to have regular conversation with the people from the company. So it wasn't कि हम कोई theoretical data पे work कर रहे थे. It was just unpaid labor which was done during our curriculum. So that's why I put it under work experience. Now if you look at the title, you can see I didn't put it as strategy consultant. I put student strategy consultant. Why this word student is really important? Two things. One, अगर आप dates देखो तो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है. सो अगर ऐसे मैं स्टूडेंट ना लिखूँ, उनको ये लग सकता है कि मैं जॉब हॉप कर रही हूँ जो कि मैं नहीं कर रही थी. एंड द सेकंड थिंग इज दे कैन थिंक दैट आई वाज स्टडिंग एंड देन आई हैड अनदर जॉब ऑन द साइड व्हिच वाज नॉट द केस एंड आई डिडंट वांट टू लाई. सो आई वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट दिस वाज अ स्टूडेंट रोल एंड यू कैन डू द सेम. इफ यू हैव वर्कड विद अ क्लाइंट, रियल वर्ल्ड डेटा पे काम किया है, देन आप वो कंपनी का नेम लिख सकते हो एंड देन स्टूडेंट, एंड जो भी अगर आपको एक्चुअली वो जॉब दी गई होती तो आपका क्या टाइटल होता आप वो लिख सकते हो. Now let's go to the second work experience, that is at Endev Studios. This was a student marketing consultant role. Again, this was not exactly our capstone project, but this was a project within our marketing class. So our professor, really kind of her, she put us in touch with the CEO of one company, Endev Studio, and we worked on the marketing strategy for that company. So that's why this also comes here, and same terminology, student title आएगा ही आएगा. And then the third experience, Click Labs. इसमें कुछ strategic नहीं है. This was actually my internship back in my final year of engineering degree जो करनी ही होती है. So I put it here. Again, I want to reiterate, ये 2020 में मैंने जो knowledge मेरे पास थी तब बनाया था. What you can do better here, अगर आप देखो, एक में strategy है, एक में marketing है, एक में तो customer success and sales है. All completely different roles and experiences. You have to be wise about this. जो आपका target role है, आप उसी के relevant सब कुछ डालो. Don't make this mistake. My work experience section is over, but still resume में इतनी ज़्यादा empty space है. So how do we go about filling it? So I thought I can put in my leadership experience / extracurriculars. So मैंने इंडिया में एक volunteer organization चंडीगढ़ में Make a Difference उनके साथ काम किया था. So I put that there.
एंड मैंने इसको भी वर्क एक्सपीरियंस की टाइप किया, जस्ट एक लाइन में नहीं लिख दिया कि वॉलंटियर्ड फॉर मैड एज अ फंड रेजिंग मैनेजर. आई रोट द कंपनी नेम, द टाइटल जो आप वर्क एक्सपीरियंस में लिखोगे, एंड देन आई रोट 3 बुलेट पॉइंट्स अंडरनीथ इट बिकॉज आई हैड टू फिल इन द स्पेस एंड आई हैड टू शो माई एक्सपीरियंस जिस भी तरह से था बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर. एंड ये जो मैंने लिखा है, मैंने एक्चुअली ये काम किया था, तो ऐसे नहीं कि आपने वॉलंटियर को, मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसे ही रैंडमली लिख देते हैं कि कौन चेक कर रहा है, बट उन्होंने उस चीज़ में काम नहीं किया होता. इसमें बैकग्राउंड प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज वॉलंटियर वर्क कौन चेक करता है, बट इफ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन अबाउट इट यू विल फंबल बिकॉज आपके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है. तो अगर कुछ उन्होंने ट्रिकी पूछ लिया तो इंटरव्यू फ्लॉप हो जाएगी. सो दैट्स अनदर रीजन व्हाई यू शुड नॉट लाई ऑन योर रिज्यूमे. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सो दिस इज मैकबोर्ड एडिटर इन चीफ. तो ये मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में देयर वाज अ लिटरेरी क्लब. वी यूज्ड टू मेक अ मैगजीन फॉर द seniors to bid them farewell, and I was the editor in chief for that, so I wrote that again. I made it like an experience. मैंने 3 points डाले so that I could elaborate about what I actually did. अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, don't worry, I am going to tell you additional things जो मेरे resume पे नहीं है but आप कर सकते हो towards the end of this video, so please bear with me. Now moving to the next section. इसमें मैंने volunteer work लिखा है, मैंने बहुत volunteer किया था अपने engineering days में, so I wrote those 2 points. फिर make a difference में wingman and then another organization. And then I still had space left on my resume, so I added an additional section column. उसमें मैंने अपने YouTube channel के बारे में बताया, then extra curriculars and in the end basic languages. So this completes my resume and it looks like मेरा बहुत अच्छा experience है, but इसमें still mistakes हैं. Like I mentioned कि मैंने सब कुछ randomly लिख दिया जो भी किया था, but you have to be strategic. जो target role है उसके according जो relevant है वो डालना चाहिए आपको. So now let's talk about what if you don't have these kind of projects in your curriculum, या आपने इतनी extra curriculars नहीं की, volunteer work नहीं किया, तो आप फिर भी अपने resume में कैसे चीज़ें डाल सकते हो. So the first thing that I would say, अगर आपका कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है you can put that. Let's say टिम हॉर्टन्स पे काम किया, मैंने भी किया था बट मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज मेरा इतना गैप नहीं था and I already had so much stuff to put in which was more impressive, so I didn't put that टिम हॉर्टन्स एक्सपीरियंस. बट अगर आपको डालना है, let's say आप टिम हॉर्टन्स डाल रहे हो एंड सेल्स पे काम कर रहे हो, तो ऐसे लिखना कि बस मैंने ऐसे कैश इकट्ठा किया, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल. बट इफ़ यू से आई यूज्ड अप सेलिंग टेक्निक्स, देन दैट मेक्स इट रेलिवेंट. तो अगर आप डाल रहे हो तो उसको भी रेलिवेंट बना के डालो. सो फर्स्ट ऑल्टरनेट इज योर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस. सेकेंड would be your projects. Let's say you are going for a BA role, business analyst, तो आप खुद projects बना सकते हो, Kaggle से data ले सकते हो, आप dashboards build कर सकते हो, end-to-end projects बना सकते हो, data fetch करके, then analyze करके, फिर उसका dashboard बना के and recommendations. So then you can have a project section on your resume and you can put it there instead of जो मेरा resume में है. And जो आपने अपनी स्कूल में assignments की होगी ना, आप उसको भी project section में डाल सकते हो. So write the name of the project and then write 2-3 bullet points underneath it कि आपने उसमें क्या टूल्स यूज़ किए, क्या चीज़ें सीखी, एंड दैट वुड मेक फॉर अ गुड प्रोजेक्ट. नाउ प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या डाल सकते हो, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर सर्टिफिकेशंस. बीए में हो, आपने टैब्लो लर्न किया है, देन यू कैन हाईलाइट कि टैब्लो लर्न किया एंड उसमें एग्जैक्टली क्या लर्न किया, तो 2 बुलेट पॉइंट्स उसके नीचे भी लिख सकते हो इफ यू हैव टू कवर द स्पेस, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वॉलंटियर वर्क. इंडिया में कोई वॉलंटियर नहीं किया, दैट इज टोटली फाइन, एंड ये तो जनरल एक्स्ट्रा करिकुलर वाला वॉलंटियर वर्क था मेरा. बट इन कैनेडा देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, मैं वेबसाइट के लिंक नीचे डाल दूंगी एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आई विल हैव टू सर्च दोस. देयर आर वॉलंटियर वेबसाइट्स जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द रोल दैट यू आर टारगेटिंग. लेट्स से बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए जा रहे हो और या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, तब सर्च कर सकते हो कि किसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वॉलंटियर कोई चाहिए या नहीं. एंड दीज इंटरव्यूज आर रियली इजी टू क्लियर बिकॉज इन्होंने पैसे नहीं देने होते, सो द बैरियर इज प्रीटी लो. अनदर बेनिफिट इज दीज जस्ट आस्क फॉर लाइक 5 to 10 hours पर वीक, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़नी पड़ेगी ये करने के लिए. सो आई वुड रिकमेंड आप अगर वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, दैट इज ग्रेट. एंड आई विल टेल यू द प्रायोरिटी जो आपको करना है. वॉलंटियर वर्क कम्स एट द टॉप. Why? Because it is something practical and you're doing it with a company. So it's very close to your work experience. The second thing, your projects. कोई company के साथ नहीं कर रहे but theory को practical knowledge में convert कर रहे हो, so that is great. Companies can know that you can actually do things end to end अगर आपने projects पे काम किया हुआ है. Then certifications come at the last. Least priority, ये बस आपके confidence के लिए है कि आपको Tableau सीखना था, आपने सीख लिया है, but still you don't have any proof कि आपको वो आ गया है या नहीं. वो projects या
रेलिवेंट वॉलंटियर वर्क से ही आप प्रूव कर पाओगे। एंड जो फोर्थ चीज़ डिस्कस की थी पार्ट टाइम एक्सपीरियंस, वो बहुत कम होगा कि आपका रेलिवेंट होगा, सो उसको मैं इस कैटेगरी में गिनी नहीं रही बिकॉज दैट इज जस्ट समथिंग दैट यू आर पुटिंग टू रिमूव द गैप ऑन योर रिज्यूमे। तो उसमें आप बस ये कर सकते हो कि आप ट्रांसफरेबल स्किल्स हाईलाइट कर सकते हो एंड जो रेलिवेंट चीज़ें हैं टू द टारगेट रोल अगर आपने वो की हुई हैं देन यू कैन मेंशन दोस। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ रियलिटी चेक बिकॉज आप फ्रेशर हो सकता है कि आपने कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखी, आपका डिप्लोमा बहुत बेसिक सा था, कुछ नहीं था खास सीखने वाला, देन देयर इज नो शॉर्टकट। आप ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते कि आपको अच्छी वाली फील्ड जॉब जिसमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए ऐसे ही मिल जाएगी बिना मेहनत के। यू विल हैव टू चूज वन रोल एंड जो आपको लगता है कि आप सीख पाओगे एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड। यू हैव टू डिवोट 3 to 6 months अपस्किलिंग। पहले तो आप सर्टिफिकेशंस करोगे सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एंड देन यू विल डू प्रोजेक्ट्स और वॉलंटियर वर्क, सो दिस कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6 months, सो यू हैव टू बी पेशेंट। तो अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है एंड आपके पास पेशेंस भी नहीं है देन देयर आर अ फ्यू रोल्स which don't involve a lot of technical skills, and if you have good communication skills you can apply for those. I will probably make another video on that, and इस वीडियो में तो मैंने अपना रिज्यूमे दिखाया था एंड बताया था कि फ्रेशर्स क्या क्या डाल सकते हैं, but I'll make another video in which I will highlight what are the most important criteria that you have to keep in mind when making a resume. I've revealed it all, the exact resume जो मैंने यूज़ किया था बिना एक्सपीरियंस के अपनी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब लेने के लिए। Now you have no excuse, आपके पास अब नॉलेज है, प्लीज इम्प्लीमेंट इट। इस वीडियो को फिर से देखो, अपना रिज्यूमे साथ में रखो and start working on it. If you found this video to be helpful, don't forget to hit the subscribe button so that you can watch my upcoming videos on how to land a field job in Canada.